رینل سسٹم ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے ٹوڈے دیٹ از اباؤٹ نیفرولتھیسس. نیفرولتھیسس it is also known as kidney stones. اس ٹاپک کو ہم ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ when we will study surgery کیونکہ اس کے اندر ہم سرجریز وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. نیفرولتھیسس کے بارے میں دیکھیں، اس کو رینل سٹون بھی کہتے ہیں، کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں، یا اور اٹ از آلسو نون ایز رینل کیلکولائی. کیلکولائی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ تو کیلکولائی مین سٹونز، زیادہ سٹونز کو کیلکولائی کہتے ہیں، ایک کو کیلکولس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو in this condition there are formation of multiple stones in the kidney of variable types. مختلف ٹائپس کے سٹون بنتے ہیں نیفرولتھیسس کے اندر. ٹھیک ہے. نیفرو اسٹینڈ فار کڈنی، لیتھیسس مین اے کنڈیشن ویئر اسٹون از فارم. لیکن ایک طرح کی سٹون نہیں بنتی، ملٹیپل ٹائپس کے سٹون بن جاتے ہیں. کڈنی کے اندر سٹون بننے کے لیے واٹ آر دی ڈفرینٹ رسک فیکٹر؟ ہمارے پاس کون کون سی رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سٹون فارمیشن کی چانسز بڑھ سکتی ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں پازیٹیو فیملی ہسٹری. پازیٹیو فیملی ہسٹری، پازیٹیو فیملی ہسٹری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے فار رینل سٹون دے آلسو رن ان دی فیملی. نمبر 2، ڈیکریز فلوئڈ انٹیک. فلوئڈ انٹیک اگر کوئی بندہ کم کرتا ہے اس میں سیچوریشن کی چانسز زیادہ ہوتی ہیں. ڈیکریز فلوئڈ انٹیک ون آف دا اسٹرانگر رسک فیکٹر فار کڈنی سٹون. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لکھے ہسٹری آف gout for long time. What is gout? It is a condition where uric acid level is deposited in the joint. تو یورک ایسڈ جب جوائنٹ کے علاوہ مختلف جگہوں پر جا کر اور ڈپوزٹ ہونے شروع ہو جاتے، ون آف دا ایریا از اے کڈنی. تو کڈنی کے اندر یورک ایسڈ سٹون بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہسٹری آف گاؤٹ کے اندر بھی نیفرولتھیسس چانسز بڑھ سکتے ہیں. کچھ میڈیکیشن ہے، مختلف میڈیکیشن ہے، کیمو تھراپی ایجنٹ ہیں، مطلب کیمو تھراپی ڈرگس پلس اینڈ لوپ ڈائیوریٹکس کے ساتھ بھی سٹونز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آر دی اسٹرانگر رسک فیکٹر. But the most important is decreased fluid intake. MCQ آتا ہے تو strong risk factor for nephrolithiasis. اس لیے کڈنی کے اندر جتنے بھی ڈیزیز ہے اس میں ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ باہر سے فلوئڈ انٹیک کو زیادہ لیا کریں، کیونکہ فلوئڈ ان دا کڈنی اسٹون آر ویری ویری پروون ٹو بی ہیلپ فل. کلینکل فیچرز لکھیں کہ ہاؤ دیز پیپل پریزنٹڈ ٹو دی clinic, especially if the person got symptoms in kidney stone. So like acute onset of severe colicky, flank or loin pain which is radiate to the groin area. For example, toward the testes in male and vulva in female.
ग्रोइन एरिया की तरफ ये पेन जाती है। दिस इज कॉल्ड रेडिएटिंग पेन। किडनी स्टोन की वजह से जो पेन होती है दैट इज वेरी वेरी सीवियर। दिस पेन इक्वल टू 5 बोन फ्रैक्शन एट वन टाइम, इसलिए ये बहुत सीवियर पेन होता है। कूली की मतलब ये है ऑन ऑफ पेन होता है, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है, एपिसोडिकली, कंटिन्यूस पेन नहीं होता, इट इज़ ऑन ऑफ। जिस एरिया में किडनी पड़ी है इसको हम लोइन एरिया कहते हैं या फ्लैंक एरिया कहते हैं। तो लोग इस तरह से इस तरह पेन कि ज़्यादा पेन इधर पे है तब मीन इट इज़ गोइंग टुवर्ड द ग्रोइन एरिया। सो ग्रोइन एरिया के अंदर टेस्टिस इन मेल, इन उल्वा इन फीमेल। So this is the classical presentation in case of kidney stones, followed by nausea and vomiting. ठीक है जी, रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स। तो नोजिया एंड वोमिटिंग भी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि किडनी स्टोन के साथ साथ इफ द पर्सन इज गॉट इन्फेक्शन इन द किडनी, फीवर मे नॉट बी देयर, मे और मे नॉट बी देयर। तो फीवर ऑप्शनल सिम्टम है, प्लस माइनस है, इट मे बी देयर और इट मे बी नॉट देयर बिकॉज सम स्टोन्स इन द किडनी दे आर अकम्पनीड बाई फीवर। मतलब कुछ स्टोन्स होती है किडनी के अंदर जिसके साथ फीवर चांसेस ज़्यादा होती है। So this is the most important. A patient presented to you with a history of acute onset sudden severe pain in the lumbar area or flank area which is radiated toward the groin area. ठीक है, और फ्लूइड देने से, अगर पानी पिलाने से वो पेन कम हो जाती है, think about that is most likely kidney stone। क्योंकि किडनी स्टोन का स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर क्या है, डिक्रीज फ्लूइड ऑफ इनटेक है। तो फ्लूइड इनटेक हम बढ़ाए और पेन टेंडेंसी कम हो जाती है, तो दिस पेन इज ड्यू टू स्टोन इन द किडनी। क्लियर है? अब लेके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन? टाइप्स, तो एक किस्म की स्टोन बनती है कि मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल टाइप। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। इन दोनों स्टोन के चांसेस होते हैं किडनी के अंदर। कैल्शियम फास्फेट भी बन सकती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी बन सकती है। ठीक है, नीचे देखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। मतलब किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट इज कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर हम बात करें, इस तरह याद रखें, कैल्शियम फास्फेट स्टोन that is formed in the kidney 70 to 80% in cases। लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें, इट इज फॉर्म इन द किडनी 90 टू 80 टू 90% ऑफ द केसेस। तो एग्जाम में अगर स्पेसिफिक आ जाए विच वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप, आंसर इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के बाद फिर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है जी, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स इनसाइड द किडनी। दूसरी बात आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज द काजेस, ये किस चीज की वजह से ज्यादा बन सकती है, काजेस की वजह से कौन कौन सी काजेस हो सकती है। एमसीक्यूज लेके, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन काज इज इडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया। कल मैंने एक कंडीशन पढ़ाया था, हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया, HIH, कि कुछ लोगों में ब्लड कैल्शियम नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कहाँ पे लीक करते हैं, यूरिन में लीक करते हैं। तो अगर ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में जाते रहे तो द किडनी बिकम सुपर सेचुरेटेड विद द कैल्शियम, और वो कैल्शियम किडनी के अंदर अगर उस पर पानी का आना कम हो जाए तो वो कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्रिस्टल में, एंड दोट क्रिस्टल विल नथिंग बट स्टोन्स इन द किडनी। इसका मतलब हाइपर कैल्सियूरिया, these calcium deal lot of the time with kidney and urine। तो यूरिन या किडनी, मतलब यूरिन में तो तब जाएंगे जब कहाँ से गुजरेंगे, किडनी से। तो किडनी के अंदर ज़्यादा देर तक कैल्शियम रहने की वजह से सुपर सेचुरेशन की चांसेस ज़्यादा होती है। तो अगर मोस्ट कॉमन स्टोन बनती है तो उन लोगों की यूरिन में भी ऑलरेडी क्या चीज़ ज़्यादा आएगी, कैल्शियम ज़्यादा आएगी। और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कल बताया था द ड्रग ऑफ चॉइस इज
thiazide, ہم کہتے ہیں thiazide, because thiazide help in the reabsorption of calcium from the kidney. یہ کنڈیشن یاد رکھیں. نیکسٹ کاز میں لکھے ہائپر پیراتائرائڈزم. ہائپر پیراتائرائڈزم ہائپر پیراتائرائڈزم از اے انڈوکرائن ڈس آرڈر جس میں پیراتائرائڈ گلینڈ بیکم اوور فنکشنل, اور جب پیراتائرائڈ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے what will happen to the level of PTH increase, PTH لیول بڑھ جاتا ہے, اور جب PTH زیادہ بڑھے گا تو وہ کیلشیم کو بڑھائے گا کہ کم کرے گا, بڑھائے گا کہ نہیں, کیونکہ PTH کا کام یہ ہے لو کیلشیم کو ہائی کرنا. تو ہائپر پیراتائرائڈزم لیڈ ٹو انکریز پروڈکشن آف PTH. Increased production will lead to increased calcium, and this excess calcium become concentrated in kidney. یہ جہاں کہاں پہ جا کر کنسنٹریٹ کرے گی, کڈنی, اور کیلشیم لو ٹو بائنڈ وتھ فاسفیٹ اینڈ کیلشیم لو ٹو بائنڈ وتھ آکزیلیٹ, اور اس کی جب کرسٹل بنے گی, جب کمپلیکسز بنے گی کڈنی میں, تو دے ول انکریز دا رسک فار دی کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم آکزیلیٹ اسٹون. کلیئر ہے. نیکسٹ لکھے فیٹ میل ایبزارپشن. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس میں فیٹ فوڈ کی صحیح طریقے سے ایبزارپشن نہیں ہوتی, ان لوگوں میں بھی کیلشیم اسٹونز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن یہ یاد رکھے کہ فیٹ میل ایبزارپشن کی وجہ سے کیوں, جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سے کیوں یاد رکھے, جن لوگوں میں فیٹ کی ایبزارپشن نہیں ہوتی, فیٹ ایبزارپشن اکر فرام دی اسمال انٹسٹائن, those people having fat malabsorption, relatively in those people there is increased absorption of oxalate. یہ MCQs ہے, مطلب جن لوگوں میں فیٹ ایبزارپشن کا ایشو ہوتا ہے تو ریلیٹیولی فوڈ کے اندر ان لوگوں میں کس چیز کی ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے, آکزیلیٹ, اور آکزیلیٹ وین ایور ایبزارب مور ان دا بلڈ دے ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ فری کیلشیم, اور جب کیلشیم آکزیلیٹ کے ساتھ مل جاتی ہے it will concentrate in the kidney leading to calcium oxalate stone. Clear ہے. تو ایک MCQs آتا ہے, fat malabsorption increase the risk of which type of stone in the kidney. Answer will be calcium phosphate یا calcium oxalate. Answer is calcium oxalate. Clear ہے. تو دیکھیں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کیلشیم فاسفیٹ یا کیلشیم آکزیلیٹ ان سٹونز کی فارمیشن چانسز کڈنی کے اندر تب ہوتی ہے when anything increase the blood calcium level. کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے بلڈ کیلشیم یا بڑھ جاتے ہیں یا بلڈ آکزیلیٹ لیول بڑھ جاتی ہے تو سٹون فارمیشن کی چانسز زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. انویسٹیگیشن لے کے, what is the investigation, اس میں ہم انویسٹیگیشن کیا کریں گے, what we will look for in the investigation. اگر ہم ایکس رے کریں کہاں کی, abdominal x-ray at the lumbar area, so this stone is radio opaque. Opaque mean کہ یہ stone ہمیں ایکس رے کے اوپر نظر آئے گا. ریڈیو اوپیسٹی, یہ stone جو ہے اس کی جو کرسٹل ہے وہ ہمیں وائٹننگ کی طرح نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ایکس رے these stone are mainly find out, ہم stone ایکس رے کے اوپر معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیں اس کی ٹریٹمنٹ. تو what is the treatment, ہم جنرل ٹریٹمنٹ ابھی پڑھ رہے, اس کی اسپیسیفک پھر ہم بعد میں جو ہے نا اوور آل پڑھیں گے. بتایا نا شابہ, جلدی جلدی ایڈ کرتے جائے اپنے کمنٹ. What you will treat, number 1 restriction of calcium in the diet, مطلب کیلشیم باہر سے اب نہیں لینا چاہیے ان ڈائٹ. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ ڈائٹ میں مزید کیلشیم نہیں آنی چاہیے کیونکہ کیلشیم فاسفیٹ سٹون ہے یا کیلشیم آکزیلیٹ ہے تو زیادہ کیلشیم ڈائٹ کے اندر ہمیں اور نہیں چاہیے ورنہ سٹون فارمیشن کے مزید چانسز بڑھیں گے. Number 2, what is the most common cause of this stone? Idiopathic hypercalciuria. For that we should continue thiazide. So thiazide therapy. Thiazide کہاں پہ کام کرتے ہیں, thiazide diuretic mainly work on DCT. Excellent. To inhibit the reabsorption of sodium and chloride. یاد ہے نا کتنا پرسنٹ سوڈیم reabsorption inhibit کرتا ہے, 8%. ٹھیک ہے. thiazide اس کے اندر دو ڈرگ بتائے تھے, HCTZ ہائیڈروکلورتھائزائڈ اور کلورتھائزائڈ. ٹھیک ہے, یہ دو یاد رکھنے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نیکسٹ ہائیڈریشن کریں گے کہ نہیں, باہر سے بندے کو کہیں گے کہ اپنی فلوئڈ انٹیک کیا کرے, زیادہ کرے. انکریز فلوئڈ انٹیک کی وجہ سے جو کنسنٹریٹڈ کیلشیم ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی اور سٹون بریک ہونے کی چانسز بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے جی. So these are the points
which can be remembered. So these are the management of the calcium oxalate or calcium phosphate stone. अब आते हैं एक और स्टोन की तरफ, नेक्स्ट स्टोन। ठीक है, ये तो पहला स्टोन हमने पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला, हमने इंशाल्लाह सर्जरी स्टार्ट करनी है 2 दिन बाद, उसमें हमने स्टोन की सर्जरी भी पढ़नी है, स्टोन सर्जिकली किस तरह रिमूव कर देते। ये सिर्फ मेडिसिन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट के सेकंड नंबर स्टोन, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। फॉस्फेट स्टोन, इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, मैप स्टोन। विच वन? मैप स्टोन। मैप स्टैंड फॉर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। मतलब इन स्टोन के अंदर कितनी चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, 3 चीज होती है। कौन कौन सी? मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट। इसमें लिखे दिस इज आल्सो नोन एज, ये वर्ड भी याद रखें, कॉमनली एग्जाम में टेस्ट होता है। व्हाट इज दिस वर्ड? दिस इज आल्सो नोन एज ट्रू वाइट स्टोन। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रू वाइट। ये ट्रू वाइट स्टोन कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखे दिस इज दी सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। मतलब ये किडनी स्टोन जो है ना, स्टोन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट के बाद क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है जी, नेक्स्ट याद रखें कि ये स्टोन जनाब ये जब बन जाता है तो इस स्टोन के साथ एक क्वेश्चन याद रखें, दिस स्टोन is always accompanied by infection। ये वाहिद क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि वो कौन सा स्टोन है जिसके साथ किडनी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आंसर इज मैप स्टोन। ठीक है जी, और अगर यह आ जाए कि विच बैक्टीरिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अलॉन्ग विद मैप स्टोन, इट्स कॉल्ड प्रोटियस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोटियस। प्रोटियस बैक्टीरिया, प्रोटियस बैक्टीरिया इंक्रीज द रिस्क फॉर द इन्फेक्शन इन केस ऑफ मैप स्टोन। हमने जो क्लिनिकल फीचर पढ़े थे उसमें मैंने कौन सी चीज ऑप्शन में रखी थी? फीवर। कि फीवर में और मे नॉट बी देयर। इसका मतलब क्या है कि फीवर एसोसिएटेड विद विच स्टोन? मैप स्टोन। क्योंकि मैप स्टोन के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। दिस स्टोन इन सम केसेस टू मच बिग which is also known as dash। जब ये बहुत बढ़ जाता है ये स्टोन, उसकी अपेयरेंस को देखकर इसका एक नाम है, इट इज कॉल्ड स्टेक हॉर्न स्टोन। इट इज आल्सो, व्हाट इज हॉर्न? सींग को कहते हैं। ये ऐसा स्टोन होता है जिसके हमें दो क्या नजर आते हैं? सींग नजर आते हैं। सींग का मतलब यह है कि जो अमोनियम फॉस्फेट है ये इसके साइडों पे इस तरह चिपक जाते हैं, मोर कंसंट्रेट। तो ऐसा बिग स्टोन जिसके 2 सींग हमें नजर आ जाए, दैट बिग स्टोन इज कॉल्ड स्टेग हॉर्न स्टोन। ठीक है जी, तो स्टेग हॉर्न स्टोन के यही इम्प्लीक्यूज है। नंबर 1, स्टेग हॉर्न स्टोन इज द combination of magnesium ammonium plus phosphate. This is the second most common stone in the kidney after calcium. Number 3 point, this stone is accompanied with a bacteria known as प्रोटियस बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटियस बैक्टीरिया। और तीसरी बात यह है कि ए स्टोन जब बहुत बढ़ जाता है उसको हम स्टेगहॉर्न स्टोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें, इन्वेस्टिगेशन एक्सरे अगर हम करें, एक्सरे सेम इट विल आल्सो विल बी लुकिंग रेडियो ओपेक। ये भी एक्सरे पे हमें रेडियो ओपेक नजर आता है। ठीक है, मतलब एक्सरे पे ये हमें दिख जाता है। ट्रू वाइट स्टोन के जनाब लेके फॉर एग्जांपल व्हाट इज दी
ट्रीटमेंट, हाँ जी, हर एक स्टोन के अंदर हम बाहर से इनफ क्या देंगे, फ्लूइड देंगे, तो हाइड्रेशन देंगे। हम पेशेंट को कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लीन एंड क्लियर वाटर पीने की कोशिश करें, जितना वो वाटर पिएगा उतना स्टोन की डिजॉल्विंग चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रीट यूटीआई, हम क्या ट्रीट करेंगे, यूटीआई एज प्रेजेंट। यूटीआई स्टैंड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी किडनी के साथ कोई भी इन्फेक्शन किडनी में हो जाए, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ यूटीआई। तो अगर यूटीआई है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। और वैसे यूटीआई ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस दैट इज कॉल्ड सेप्रोफ्लॉक्सासिन, हम क्या देते हैं, सेप्रोफ्लॉक्सासिन। ये नोविडेट के नाम से आता है टेबलेट में, ठीक है। तो सेप्रोफ्लॉक्सासिन इज द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ यूटीआई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ स्टेक हार्न इज डायग्नोज, स्टेक हार्न का मतलब क्या है, अर्ली केस है कि लेट केस है, लेट केस है, ये बहुत बढ़ चुका है ये स्टोन, तो फिर मेडिसिन विल नॉट वर्क, वी हैव टू रिमूव व्हाट, सर्जिकल रिमूवल। हम फिर क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे, क्योंकि स्टेक हार्न स्टोन इतना बड़ा स्टोन होता है कि ये यूरिन की आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और ये किडनी को मजीद डैमेज कर सकता है। तो रिमेंबर दिस कि इफ true white stone is big so much that it is converted into Staghorn stone। Staghorn stone का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की रिस्क की वजह से इस स्टोन को हम मजीद टाइम नहीं दे सकते एंड वी हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर स्टोन। क्लियर है जी, ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टोन की तरफ जाएंगे, द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन। किडनी के अंदर जो थर्ड नंबर स्टोन बनता है दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन, देखिए दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन seen in around 7% of the cases। ये 9% केस में मिलता है, तो दूसरा तो 90%, 80-90, ये 9 है और ये 7% केसेस में मिल जाता है। इसकी काजेस क्या हो सकते हैं, यूरिक एसिड आता कहाँ से है, कवर फ्रॉम वेयर यूरिक एसिड कम, इट इज द एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये कहाँ से आता है, प्यूरिन। इधर फोकस करें, दिस इज सेल, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, दिस इज अ न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, डीएनए। डीएनए कंटेन रिंग पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। तो डीएनए का जो प्यूरिन रिंग है, ये नाम सुना है कि नहीं, इसके मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये प्यूरिन क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जेंथीन में। किस में कन्वर्ट होता है, जेंथीन। जेंथीन कन्वर्ट इनटू हाइपोजेंथीन, ठीक है, ये इस तरह पाथवे है, और हाइपोजेंथीन कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। and this uric acid is normally should excrete out of the body by the kidney, ये किडनी से निकलना चाहिए। इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अगर सेल टर्न ओवर बढ़ जाए, इंक्रीज सेल टर्न ओवर, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, शाबाश, इंक्रीज सेल टर्न ओवर, ये कौन बता सकता है, इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज सेल टर्न ओवर, ऐसा कंडीशन जिसमें सेल रीजनरेशन रिप्रोडक्शन रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उतना प्यूरिन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उससे यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस ज़्यादा, मल्टीप्लीकेशन रेट बढ़ जाता है सेल में, टर्न ओवर बढ़ जाता है, तो देयर विल बी इंक्रीज यूरिक एसिड। व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, याद रखें, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब क्या है कि इन सम कैंसर पेशेंट, ट्यूमर मीन कैंसर, कैंसर के अंदर हर एक सेल की प्रोडक्शन रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अनकंट्रोलेबल फैशन की तरह। तो अनकंट्रोलेबली, अनरेगुलेटेडली जितना सेल साइड बाय साइड मल्टीप्लाई होते रहेंगे, तो कैंसर सेल उतने साइड बाय साइड डाई भी होते रहेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन एंड लाइसिस आर गोइंग साइड बाय साइड इन द ट्यूमर। इसका मतलब कैंसर के अंदर लाइसिस होगी क्या नहीं,
कुछ सेल मेच्योर बनेंगे, कुछ इमेच्योर बनेंगे, कुछ सेल फंक्शनल बनेंगे, कुछ डिफेक्टिव बनेंगे। तो लाइसिस और प्रोडक्शन दोनों होती है। तो जितना सेल लाइसिस होगी उतना सेल की लाइसिस से प्यूरिन से क्या निकलेगी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट जनाब हमारे पास देखिए रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की वजह से why renal failure increase the risk for uric acid stone? Because uric acid should be under excrete out of the body. Under excretion. Excretion is mainly done by the kidney. और अगर किडनी फेल है, वो सही तरीके से काम नहीं करती, इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड विल रिमेन इन द बॉडी, दैट विल लीड टू यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड जब बॉडी में बिल्ड हो जाती है ना, हाइपर यूरिसेमिया, इनिशियली इट विल टारगेट द जॉइंट, बट जॉइंट्स के बाद इट विल टारगेट द किडनी। तो स्टोन बहुत बाद में बन जाती है, बट दीज आर द पाथवे हाउ यूरिक एसिड स्टोन विल बी फॉर्म इनसाइड द किडनी। नाउ क्वेश्चन ये है कि यूरिक एसिड बढ़ने के रीजन क्या है? या तो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए या एक्सक्रीशन रेट कम हो जाए। ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड या अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, बोथ वे कैन लीड टू हाइपरयूरिथेमिया, इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूरिक एसिड स्टोन। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरयूरिथेमिया, आंसर इज अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। प्रोडक्शन बहुत कम लोगों में बढ़ जाता है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ने का ज्यादा वजह यह होता है कि भाई इस बंदे की एक्सक्रीशन रेट बहुत ज्यादा कम है। तो जब भी यूरिक एसिड किसी का ठीक नहीं होता, यू हैव टू डू अ टेस्ट फॉर आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, कि किडनी काम किस तरह कर रही है। क्लियर है। ओके जी। तो जी हाँ जी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मतलब पेशेंट इन कैंसर ट्यूमर, जिसमें ट्यूमर में हर एक चीज अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है, प्रोलिफरेट, उतना हर एक चीज साइड बाय साइड लाइस होती जा रही है। तो प्रोलिफरेशन इन लाइसिस अकर बोथ साइड बाय साइड। तो लाइसिस ऑफ द सेल जितना ज्यादा होगा, उतना डीएनए ज्यादा प्यूरिन में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है। लेके जनाब इन्वेस्टिगेशन, इसकी जब हम, अब आप लोगों के क्लिनिकल फीचर हमने क्यों नहीं लिखे? क्लिनिकल फीचर आर सेम फॉर एनी टाइप ऑफ स्टोन इन द किडनी। पहले लिखे ना, acute sudden onset lumbar area pain which is radiating towards the groin area, that feature will be almost same in all type of stone। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखे रेडियो ल्यूसेंट। अब ये एमसीक्यूज है, रेडियो क्या है? ल्यूसेंट। इससे पहले जो दोनों स्टोन थे वो क्या थे? रेडियो ओपेक थे, लेकिन एक्सरे पे ये रेडियो ल्यूसेंट आते। व्हाट इज रेडियो ल्यूसेंट? द फाइंडिंग ऑन एक्सरे वेयर वी कैन लूसेंट मीन लूज दैट स्टोन। इसका मतलब कि ये एक्सरे पे हमें सही तरीके से नजर नहीं आता। तो एक्सरे विल बी द गुड चॉइस और बैड चॉइस? बैड चॉइस। तो हाउ वी विल डिटेक्ट? दीज स्टोन्स आर मेनली डिटेक्टेड बाय व्हाट? आंसर इज सीटी। हम क्या करते हैं? सीटी करते हैं, सीटी ऑफ द बैक ऑफ द एब्डोमेन, किडनी। तो डिटेक्टेड विथ सीटी, इसलिए इस पे जनाब यूरिक एसिड स्टोन जो है हमें एक्सरे पे नजर नहीं आते। ट्रीटमेंट लेके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? हाइड्रेशन देते हैं सबसे पहले, हाइड्रेशन। हम फिर बाद में देते सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट बाहर से देते हैं हम। सिट्रेट इसलिए देते हैं, हाँ जी सिट्रेट, हम सिट्रेट इसलिए देते हैं, सिट्रेट हेल्प टू प्रोड्यूस मोर बाइकार्बोनेट। ये क्या पैदा करता है? बाइकार्बोनेट। सिट्रेट देने से इंक्रीज HCO3 लेवल इन लीवर। अब ये लीवर में जनाब HCO3 लेवल को बढ़ा देता है सिट्रेट। तो इसका फायदा क्या है, कौन बता सकता है? हमने ये बात की थी ना, फॉर एग्जाम्पल pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, याद है कि नहीं? और pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2। ये तो हमने बार बार बात की है ना। कहने का मतलब ये है, दिस स्टोन इज यूरिक एसिड, ये एसिड है। इसका मतलब कि एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन दीज पीपल विल बी मोर और लेस? मोर। इसका पीएच कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। एसिडिक पीएच कम होता है ना, लेस देन 7.35। तो यूरिक एसिड स्टोन है, एसिड है, ये पीएच को कम करता है। अब बॉडी के अंदर किडनी में पीएच को दोबारा रिटेन करने के लिए हमने पीएच बढ़ाना है, अल्कलोसिस की तरफ लेके जाना है। तो हमने किस चीज की लेवल को बढ़ाना है? HCO3।
HCO3 बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा, एसिडिटी के चांसेस कम होंगे, यूरिक एसिड की जो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट है वो बढ़ जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ है जो HCO3 को बढ़ा सकता है? दैट इज सिट्रेट। क्लियर है? तो सिट्रेट इज गिवन टू मेक द एनवायरनमेंट एसिडोटिक के अल्कलोटिक। अल्कलोटिक, एनवायरनमेंट इज ऑलरेडी एसिडोटिक, तो हम अल्कलोसिस के लिए दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे कि हम यहाँ पे एक और ड्रग भी दे सकते हैं, एलोप्यूरिनोल। व्हाट इज एलोप्यूरिनोल? एनीवन? एलोप्यूरिनोल इज अ ड्रग। इधर देखिए, प्यूरिन किस में कन्वर्ट होता है? जेंथीन में। जेंथीन किस में कन्वर्ट होता है?